یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون. سب کوئی میدان محشر کی طرف جائیں گے, دوڑ پڑیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, سب ایک طرف سے میدان محشر کی طرف دوڑیں گے, قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کیا ہو گیا ہے, یہ چیخ و پکار کس چیز کی ہے. سب یہ سن کر میدان محشر کی طرف جائیں گے. حدیث یہ کہتی ہے لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع وفی روایت عن خمسہ. سب کو روک دیے جائیں گے, ایک لائن پہ کھڑا کر دیے جائیں گے اور ان سے 5 سوال, 4 سوال یا 5 سوال پوچھیں گے. جب تک کوئی انسان جواب نہیں دے سکے گا اس کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی, آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب اسرافیل علیہ السلام سور میں سور پھونکیں گے اور سب کو میدان محشر کی طرف جائیں گے, ایک باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, ایک بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, ماں اپنے بیٹی کو چھوڑ کر چلی جائیں گی, بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ کر چلی جائیں گی. اے لوگوں, قرآن یہ کہتا ہے یوم ترونا تسأل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. ایک انسان آپ دیکھیں گے اور یہ تصور کریں گے کہ جس کے پیٹ میں, جس لڑکی کے, جس عورت کے پیٹ میں, جس ماں کے پیٹ میں حمل ہو, جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہو, وہ بچہ کب گر جائے گا اس ماں کو یہ خیال نہیں ہوگا. اور جس ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلا ہے, جس ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر اس دنیا سے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ویسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے, وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائیں گے. یا پھر جو دودھ پلاتے ہوئے بچے اور قیامت اس حال میں آئیں گے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہے تھے, میرے پیارے ساتھیوں بھول جائیں گے. اب یہ غور کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ کی چیخ و پکار اور کلکاریاں اگر آئے پورے گھر میں, اور آپ کے گھر میں آپ کی ماں بھی ہو, آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں بھی ہو, یعنی جس کا بچہ ہے سب سے پہلے ان کے کان میں آواز پہنچتی ہے, اس بچے کی چیخ و پکار پہنچتی ہے. یعنی باپ کو سب سے پہلے یہ علم نہیں ہوگا, بیٹا کو نہیں ہوگا, بھائی کو نہیں ہوگا, لیکن بچے کی چیخ و پکار سب سے پہلے ماں کے کانوں میں پہنچے گی. لیکن قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ وہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے, اور جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اپنے بچے کو کب گرا دیں گے اس کو احساس نہیں ہوں گے, احساس نہیں ہوں گے. ایک ماں سمجھ سکتی ہے, ایک عورت سمجھ سکتی ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور انہوں نے ایک دو بچے کو جنم دیا, کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنا درد ہوتا ہے. یہ اسی چیز کو ہماری ماں اور بہنیں سمجھ سکتی ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے. لیکن قیامت کے عالم جب ہوں گے, قیامت کا منظر ہوں گے, تو وہ ماں اپنے پیٹ میں جو بچہ ہے کب گر جائے گا اس کو احساس تک نہیں ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, آؤ میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ واقعہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے, یہ واقعہ میں نے خود تجربہ کیا ہے. ہم بھی اس جگہ پہ موجود تھے. ایک گائے جو اپنے بچے کو جنم دے رہی تھی. یہ ایشور کو یہ منظر سامنے لانا تھا اور سب کے سامنے یہ منظر سامنے رکھنا تھا. ہماری ماں بہنیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں. حالات کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتے ہیں. وہ گائے کا بچہ پیدا ہو رہا تھا, ان کی ولادت ہو رہی تھی. اتفاق سے سر نکلا, 2 پیر نکلے اور 2 پیر رہ گئے. لوگوں نے بڑی کوششیں کی, 1-2 گھنٹہ کوششیں کی, ڈاکٹروں کو بلایا گیا, لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا. یہاں تک کہ اللہ کا کرشمہ, اور اللہ کو یہ منظر سامنے لانا تھا. اس بچے کو اس کے گلے میں رسی ڈال دیے گئے اور اس کو کھینچتا گیا. 10-15 آدمی نے مل کر کھینچا, لیکن وہ باہر نہیں آیا. یہ ایشور کو یہ منظر سامنے لانا تھا اور یہ لوگوں کو عبرت دینی تھی. لوگ یہ سمجھے اور اس سے عبرت حاصل کرے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر ایسی نوبت آ گئی کہ وہ بچہ 1-2 گھنٹے کے بعد مر گیا اور ساری محلے کی عورتیں آ گئے, پورے محلے والے اس جگہ میں آ گئے, اس مجلس میں آ گئے. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہماری ماں بہنوں کی آنکھوں میں سب سے زیادہ آنسو تھے, کیونکہ وہ اس چیز کا احساس, اس چیز کا درد کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. میری آنکھوں میں بھی اس وقت آنسو آ گئے. یا اللہ, یہ کتنی تکلیف کا مظاہرہ, یہ کتنی تکلیف کی بات ہے. اور ہماری ماں بہنوں یہ کتنے تکلیف کے دور سے گزر رہے ہیں. ان کو کتنا درد اور کتنے تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ جب اس کے بچے
बच्चे को खींचा जा रहा था, 10 आदमी मिलकर खींच रहे थे, फिर भी वो बच्चा बाहर नहीं आ रहा था, वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा था मेरे प्यारे साथियों। लेकिन ऐसे मराहिल से गुजरने के बाद फिर भी अल्लाह ताला ने उस जानवर को जिंदा रखा। ये अल्लाह लोगों को मैसेज दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, ऐसे ऐसे हालात भी आ जाएंगे। फिर वो बच्चा जब मर गया तो उस बच्चे को सारे लोगों के सामने, उस जानवर के बच्चे को सारे लोगों के सामने काट दिया गया, उनके मुंह को, उनके सर को काट दिया गया। हमारी माँ बहनें चीखों पुकार से रोने लगी, सबके सामने ऐसा मंजर सामने आया कि उस बच्चे को आखिरकार काटना पड़ा और काट के वो बच्चे को फिर बाहर किया गया। आए लोगों, लेकिन कयामत का आलम और कयामत की होलनाकी को जरा अपने सामने रखिए और फिक्र आखिरत से जुड़ जाइए। जिस माँ को इतनी तकलीफ इस दुनिया में होती है, एक बच्चा को पैदा करने के वक्त होता है, लेकिन कयामत की आलम और कयामत के मंजर में ये तमाम चीजें वो भूल जाएंगे। कब उसके पेट से बच्चा गिर जाएगा उसको एहसास तक नहीं होगा। और दूध पीते माँ अपने बच्चे को दूध पीते हालत में छोड़ जाएंगे, भूल जाएंगे। ऐसा लगेगा कि लोग मदहोश हो गए, लोग बेहोश हो गए, लेकिन हालांकि ये बेहोश नहीं हुए। तो एक कयामत की होलना की है ये, तो ये कयामत की होलना की है। फिर मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसा आलम हो जाएगा, लोग पसीने से शराबुर हो जाएंगे। तुद नशम्सु यौमल क़ियामा, सूरज को माथे के करीब लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। वो सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख की बुलंदी पर है, लेकिन उनकी रोशनी से हम पसीने में शराबुर हो जाते हैं। लेकिन कयामत का आलम जब होगा, वो सूरज हमारे माथे के करीब लाकर खड़ा कर दिए जाएंगे। अब इस चीज को एहसास कर सकते हैं कि कितने पसीने हमारे पास होंगे। लेकिन हदीस की किताब ये कहती है कि उस दिन कोई साया नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, कोई साया नहीं होगा रब के अलावा और अर्श के साये के अलावा, उस दिन कोई साया नहीं होगा। हमने अगर इस दुनिया में नेक अमाल किए होंगे, हमने लोगों के साथ अच्छा इंसाफ किया होंगे और लोगों के साथ अच्छा इंसाफ किया है, हमने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया है, हमने इंसाफ करने में अपनी जाती मफादी फायदा नहीं उठाया है। ये नहीं कि ये मेरा भाई है तो इसके पक्ष में फैसला कर दिया, ये नहीं कि ये मुसलमान है तो इसके पक्ष में फैसला कर दिया, बल्कि हक का फैसला किया। ऐसे लोगों को कयामत में अर्श के साये के नीचे जगह मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, फिर लोगों को लाइन और कतार से लगा दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि कोई इंसान आगे नहीं हिल सकता है। ला तज़ालु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन अर्बा व फी रिवायतिन अन खम्सा, जब तक 4 सवाल ना पूछ लिए जाए, जब तक 5 सवाल ना पूछ लिए जाए। अब आइए, जो 5 सवाल और 4 साल पूछे जाएंगे उन पर मैं तशरीह कर रहा हूँ। अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। ऐ लोगों, हमने तुम्हें दुनिया में 70 साल, हमने तुम्हें दुनिया में 80 साल, हमने तुम्हें दुनिया में 100 साल की उम्र दिए, बताओ तुमने उस उम्र को किस राह में लगाया? अगर आपने इस दुनिया में अच्छे और नेक अमल करने में उस वक्त को सर्फ किया होगा, आप अल्लाह को जवाब दे सकेंगे, ऐ अल्लाह मैंने ये वक्त जो सर्फ किया है तेरी इबादत में सर्फ किया है, ऐ अल्लाह मैंने ये वक्त जो लगाया है तेरी इबादत में लगाया है, यतीमों की मदद करने में लगाया है, गरीबों की मदद करने में लगाया है, वो जवाब देकर पास हो जाएगा। दूसरा सवाल नौजवानों से किया जाएगा, नौजवानों से किया जाएगा। दूसरा सवाल, जो इंसान जवान है और उनको दुनिया में जवानी मिली है उनके बारे में पूछा जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि आए जवानों, आए 40 साल के जवानों, 20 साल से 40 साल की उम्र पाने वालों, ये बताओ कि तुमने ये जवानी किस राह में खर्च किए, ये जवानी किस काम में लगाए? वो अगर सही रास्ते पे लगाया है तो जवाब देकर पास हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, फिर तीसरा सवाल मालदारों से किया जाएगा कि बताओ तुमने दुनिया में माल और दौलत इतने कमाए, दुनिया में इतने माल और संपत्ति कमाए, दुनिया में तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, दुनिया में इतने इतने कारोबार के मालिक थे, दुनिया में तुम्हारी इतनी फैक्ट्रियां थी, बताओ तुमने उसको कहां से कमाया? मेरे प्यारे साथियों, अगर हलाल की कमाई हो, पसीने से कमाई हो, अगर हमने जायज तरीके से माल कमाया है तो हम जवाब देकर पास हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने हराम तरीके से कमाया है तो हम ईश्वर के सामने फंस जाएंगे। फिर चौथा सवाल होगा, ऐ लोगों
लोगों, हम मानेंगे कि तुम दुनिया में अच्छे और नेक और जायज तरीके से पैसा कमाया है, लेकिन उस पैसे को कहाँ खर्च किया है? ये जो जलसा हो रहा था, यहाँ इतने बड़े गुमानी में जलसा हो रहा था, क्या तुमने यहाँ कुछ पैसे खर्च किए या नहीं? क्या तुमने यहाँ कुछ ज़कात दिया या नहीं? क्या तुमने यहाँ कुछ चंदा दिया या नहीं? ये अगर आपने सही तरीके से जवाब दे दिया तो आप पास हो जाएंगे। पांचवा सवाल मौलवियों से किया जाएगा, ए मौलवियों, तुम दुनिया के अंदर इल्म से उस पर खुद कितना अमल किया और दूसरों को कितना कराया? ये 5 सवाल इंसान से पूछ लेंगे। उसके बाद जन्नतियों को जन्नत की तरफ कर दिया जाएगा, जन्नतियों को जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और जहन्नमियों को भी जहन्नम का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा, आए फरिश्ता जाओ जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाओ, और आए जहन्नमियों, एक फरिश्ता से कहा जाएगा, आए फरिश्ता जाओ जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाओ। जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। इतने में एक फरिश्ता आएगा और कहेगा, ए जन्नतियों रुक जाओ, ए जहन्नमियों रुक जाओ, एक चीज मैं तुम्हारे सामने बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। तुम्हारे जहन में शक उलझन और वहम गुमान में तुम मुब्तला हो, उसको दूर कर देना चाहता हो। दुनिया के अंदर तुमने देखा है कि मौतें आई है, दुनिया के अंदर तुमने देखा है कि एक इंसान को मौत के मरहले से गुजरना पड़ा। ये एक बड़े बड़े पैसे वालों को भी मौत के अय्याम से गुजरना पड़ा, उनको भी मौत आए। ये मौत को भी आज यहाँ मौत आ जाएगी ताकि तुम्हें इस चीज का एहसास और शक ना हो कि जन्नत में हमें मौत आएगी, जहन्नम में हमें मौत आएगी। नहीं नहीं, आज तुम्हारे सामने मौत को लाया हो, एक मेंढा की शक्ल में मौत को लाए जाएंगे, एक मेंढा के शक्ल में लाए जाएंगे, एक दुम्बे की शक्ल में मौत को लाए जाएंगे। मौत भी अल्लाह के मखलूक है और सब मखलूक को फना होना है। मेरे प्यारे साथियों, कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएंगी, मौत को भी फना होना है। वो फरिश्ता कहेंगे, ए जन्नतियों ये तुम्हारे सामने मौत है, ए जहन्नमियों ये तुम्हारे सामने मौत है। आज मौत को भी मौत आ जाएगी, मौत उस दुम्बे के ऊपर छुरी चला दिए जाएंगे, उस दुम्बे को मार दिए जाएंगे और कहा जाएगा जब मौत को भी मौत आ गई है, लिहाजा जन्नत में तुम्हें मौत नहीं आएगी, जहन्नम में तुम्हें मौत नहीं आएगी, जाओ जन्नत में हमेशा के लिए रहो, मौत नहीं आएगी। फिर जन्नती जन्नत के बाला खाना में घुसेंगे, जन्नत के बाला खाना में दाखिल होंगे, जहन्नमी जहन्नम के बाला खाना, जहन्नमी जहन्नम के तबके में, निचले तबके में, निचले खाई में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे और देखेंगे, या अल्लाह हमारा कौन सा अमाल, हमने दुनिया में कौन से बुरे अमाल किए थे जिसके बदौलत आज हमें जहन्नम मिल रही है। ऐ अल्लाह फला को जन्नती, फला जन्नती, फला जन्नती, फला को जन्नत का सर्टिफिकेट मिल रहा है। या अल्लाह हम तो दुनिया में उसी के साथ रहा करते थे, लेकिन आज क्या बात है कि उसको जन्नत मिल रही है और हमें जहन्नम में रख दिए गए हैं। जवाब आएगा, वलम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन। जब अजान की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही थी, वो तुम्हारा दोस्त भले ही तुम्हारे साथ बाजार जाए, वो तुम्हारा दोस्त भले ही तुम्हारे साथ रहे, लेकिन अजान की आवाज सुनकर वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। वो दोस्त तुम्हारा जो यतीमों को खाना खिलाया, लेकिन तुमने दुनिया में यतीम को खाना नहीं खिलाया। फिर जहन्नमी जन्नती से कहेंगे, आए जन्नतियों आज हमारा गला सूख रहा है, जन्नत का थोड़ा सा भी हयात दे दो, हम उससे अपने प्यास को बुझा लेंगे। जन्नती कहेंगे, आए जहन्नमियों तुम जन्नत की आबे हयात मांग रहे हो, यहाँ आबे हयात तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की तुम्हें खुशबू तक नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, ये कहकर जन्नती जन्नत की खिड़कियों को बंद कर देंगे। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि इस दुनिया में मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए और फिर आखिरत से जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इंसान की मुकद्दर में जन्नत और जहन्नम है, ये तो सब मानता है। एक जैनी भाई भी मानता है, ये एक सनातनी भाई, एक शाश्वत धर्म के रहने वाले भाई, हिंदू भाई जिसको हम, वैसे तो सनातन का माना इस्लाम होता है, सही रास्ते पे चलने वाला होता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस चीज को सब इकरार करेंगे और कहेंगे कि हमें मौत आनी है, हमें जन्नत और जहन्नम में जाना है, इस चीज को सब तसव्वुर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों इसलिए आप ये ना सोचें कि आप मौत से बच जाएंगे, बल्कि आपको मौत की तैयारी करनी चाहिए। और मौत की तैयारी करने के लिए आपको मैं कुरान और हदीस के साथ साथ वेदों के भी हवाला दे रहा हूँ। बहूनी में बियाती तनी जन्मानी
तौष्टचा अर्जुन, श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को, अर्जुन दुनिया के अंदर कोई ऐसा ज़माना नहीं रहा जिसमें हम ना रहे और तुम ना रहे, भले ही हमें जो इल्म है तुम्हें नहीं। यानी इस चीज़ को इस दृष्टि से देखा जाए तो ये मंत्र का तर्जुमा फिट बैठता है कि मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में इंसान आते रहे, दुनिया में इंसान पैदा होते रहे, इंसान की नज़र में रहते रहे, लेकिन मौत का सिलसिला जारी है। एक इंसान इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आता है, एक इंसान को इस दुनिया से जाना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए आखिरत की। और ये कहेंगे कि हमें मौत नहीं आएगी, मौत बिलाशुबा आएंगे और क़यामत आपके सामने होकर रहेंगे, क़यामत आएंगे। ये आइए हम इस चीज को इस दृष्टि से देखते हैं कि क़यामत आएगी, इंसान का ही जन्म मिलेगा। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में जो आवागमन बताया गया है कि इस दुनिया में इंसान जैसा अमल करेगा उसको इसी दुनिया में दूसरे जन्मों में फेरा जाएगा, उनके योनि को, उनके रूह को दूसरे योनि में प्रवेश किया जाएगा। अगर कोई रिश्वत खाए तो कुत्ते का जन्म मिलेगा, किसी ने किसी को लाठी से मारा तो उसको कुत्ते का जन्म, कोई अगर मेरे प्यारे साथियों चोरी करे बिल्ली का जन्म। इस तरह उनकी किताब में आवागमन है। लेकिन हाँ, वो भी मानते कि इंसान को इस दुनिया से जाना है, वो भी मानते कि ईश्वर ने, अल्लाह ने किसी के लिए जन्नत, किसी के लिए स्वर्ग, किसी के लिए नर्क ये बनाए रखे हैं। लेकिन हमें और आपको इस चीज को गौर से समझना चाहिए और ये क़यामत के बारे में इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि क़यामत होंगे या नहीं, ये तो इंसान को बेवकूफ बनाया जाता है। हमने बाप की जुबान से यही बात सुन के आ रहे हैं, दादा की जुबान से यही बात सुन के आ रहे हैं कि क़यामत होगी, लेकिन कहाँ हो रही है। हमारे दादा इस दुनिया से गुजर गए, क़यामत नहीं हुई, बाप भी इस दुनिया से गुजर गए, कहाँ क़यामत हो रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान के अंदर आयतें नाजिल करता है, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा। आए नबी, जो लोग क़यामत के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करते, बहस करते हैं, आप उनसे कह दीजिए क़यामत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को है। लेकिन हाँ, जो ये कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, उनको क़यामत ज़रूर हो, उनके सामने उनको दोबारा वजूद में लाए, दोबारा मौत दी जाए, दोबारा उनको मौत भी आएंगे और दोबारा उनको जिंदा भी किए जाएंगे।